नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा 9 में हम पढ़ रहे थे एक निबंध, क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध हमें निराश नहीं होने की प्रेरणा देता है। लोग बात बात में निराश हो जाते हैं। समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे देख के हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आस्थावान हैं। हमें उन्हीं से प्रेरणा लेकर निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने अपने जीवन में कुछ घटनाएं घटी है, उस घटनाओं का वर्णन करते हुए हमें आस्थावान बने रहने की प्रेरणा दी है। प्रकरण का अगला भाग हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। आखिर में हम पढ़े थे कि जो लोग गुमराह हो जाते हैं उसको ठीक रास्ते पर लाने की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह भूख लगती है तो हमें खाना खाना चाहिए, खाना खाने बगैर हम नहीं रह सकते। बीमार व्यक्ति को सारवार करनी चाहिए, उसकी दवा दारू करनी चाहिए। तो मित्रों, लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति गुमराह होकर अनीति और अत्याचार के रास्ते पर चल रहा हो उसे ठीक रास्ते पर हमें चौकस लाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। એવું થયું છે કે આ દેશની અંદર કોટી કોટી મતલબ કરોડો કરોડો એમ પણ થાય અને જાત જાતના પણ એવું પણ થાય। તો એવા જે દરિદ્રજનો એટલે કે ગરીબ લોકો છે એમની જે નીચલી કક્ષાની જે દશા છે, સાવ છેલ્લી કક્ષાની દશા છે, એ દશાને હીન દશાને દૂર કરવા માટે અનેક પ્રકારના કાયદા કાનૂન બનાવવામાં આવ્યા છે। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो खेती उद्योग, वाणिज्य, व्यापार उद्योग, शिक्षण અને આરોગ્યની સ્થિતિને વધારે ઉન્નત બનાવવા માટે અને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે એનું એક જ આ લક્ષ્ય છે। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। પણ જે લોકોને આ કાર્યમાં લાગવાનું છે, આ કાર્ય જે લોકોએ કરવાનું છે એમનું મન દરેક વખતે પવિત્ર હોતું નથી। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो થાય છે શું કે જે લોકોએ આ ગરીબ લોકોની અવસ્થાને સુધારવાનું કાર્ય કરવાનું છે, કૃષિ ક્ષેત્રે, વાણિજ્ય ક્ષેત્રે, વ્યાપાર ક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે કે આરોગ્યની સ્થિતિ, તો જે લોકોએ આ કાર્ય કરવાનું છે એ જ લોકો પોતાનું સુખ સુવિધા વિશે વિચારે છે અને આ કાર્ય કરતા નથી અને એમનું ધ્યાન પોતાનામાં જ લાગેલું રહે છે। વ્યક્તિચિત્ત सब समय આદર્શો દ્વારા ચલિત નહીં હોતા। વ્યક્તિનું મન છે દરેક સમય આદર્શો દ્વારા ચાલતું નથી। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतने ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। तो જેટલા પ્રમાણમાં આ ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યના વિકાસ માટે જે કંઈ વિધાન બનાયા એટલે કે જે કાયદા કાનૂન બનાયા એટલી જ માત્રામાં, એટલા જ પ્રમાણમાં લોભ મોહ જેવા વિકાર પણ ફેલાતા ગયા। તો જે આપણે સારા માટે જે કંઈ કરીએ છીએ એટલું જ ખરાબ કાર્ય માટે થઈ રહ્યું છે। लक्ष्य की बात भूल गई અને જે આપણો ટાર્ગેટ છે, જે લક્ષ્ય છે, ઉદ્દેશ છે એ ભૂલાઈ જાય છે। આદર્શો को मजाक का विषय बनाया गया। लेखक શું કહે છે કે આપણા જે આદર્શો છે એને મજાકનો વિષય બનાવ્યો છે। और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी
દકિયાનુસી એટલે એક પ્રકારનું એમ કે સાવ હીન કક્ષાનું જે સંયમ છે આપણો, એ સંયમને તો આપણે સાવ ભૂલી ગયા છીએ। પરિણામ જો હો ના હો વહ હો રહા है, પરિણામ જે આવવાનું હોય એ આવે જ છે। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। અને આ શાના માટે છે? થોડાક માણસો, બધા સમાજમાં એવા નથી હોતા, પણ અમુક એવા લોકો છે એમના લોભના કારણે આવું પરિણામ ભોગવવું પડે છે। परंतु इसमें भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। જ્યારે આવું બને છે, જ્યારે આપણને એમ લાગે છે કે આપણા આદર્શો ભૂલાઈ રહ્યા છે, ત્યારે લોભ મોહ કો કામ ક્રોધ જેવા દુર્ગુણો બધે ફેલાઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણને આપણા આદર્શોનો મહાન ઉપયોગ આપણને જોવામાં આવે છે। અને એ વખતે જ ખરાબ કાર્ય થતું હોય ત્યારે જ સારું કાર્ય યાદ આવતું હોય છે। એવી રીતે આપણને આપણા આદર્શો એ વખતે યાદ આવે છે। ભારતवर्ष सदा कानून को धर्म रूप से मान देखता आ रहा है। કાયદાને ભારતમાં ધર્મનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને દરેક કાયદાને આપણને ધર્મના રૂપથી જોઈ રહ્યા છીએ। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया, પણ આજે એકાએક કાયદો અને ધર્મ એને અલગ કરી દેવામાં આવ્યું છે। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ધર્મને આપણે ધર્મની સામે આપણે દગો નથી કરી શકતા, કારણ કે આપણને ધર્મથી દગો કરતાં આપણને ડર લાગે છે, પણ કાયદામાં આપણે એવું વિચારતા નથી। ધર્મ કાયદાને પહેલાં ધર્મ માનવામાં આવતો હતો, પણ આજે શું છે, કાયદો અને ધર્મ બંનેને અલગ કરી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે કે કાયદો તોડતા કોઈને ડર લાગતો નથી। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। धर्म भीरु પણ ધર્મથી ડરે છે, એનું કારણ શું છે? धर्मથી डरे છે એટલે લોકો ધર્મ ભીરુ છે। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, પણ કાયદાની અંદર કંઈક ખામીઓ હોય એ ખામીઓનો લાભ ઉઠાવવા માટે તે જરા પણ શરમાતા નથી, જરા પણ શરમ અનુભવતા નથી। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। તો આ વાતના ઘણા બધા એવા प्रमाणों છે એ આપણે શોધી શકીએ છીએ कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। સમાજની અંદર જે ઉપરનો જે વર્ગ છે, જે સજ્જન લોકોનો વર્ગ, શ્રેષ્ઠ વર્ગ છે, એમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું હોય, પરંતુ અંદર અંદર આ ભારત દેશની અંદર એનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। કયો અનુભવ થઈ રહ્યો છે? કે ધર્મ કાનૂન से बड़ी चीज़ है। તો ધર્મ છે એ કાનૂનથી મોટી વસ્તુ છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने। આજે પણ સેવા, પ્રમાણિકતા, સચ્ચાઈ અને ધાર્મિકતા એના મૂલ્યો આજે પણ બની રહ્યા છે, મતલબ કે આજે પણ એની ગણના થાય છે। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। આ બધા જે ગુણો છે, સેવા, ઈમાનદારી, સચ્ચાઈ, આ બધું છે અવશ્ય દબાઈ ગયું છે, પરંતુ એ નષ્ટ થયા નથી। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। આજે પણ તે મનુષ્યને પ્રેમ કરે છે। મહિલાઓ કા सम्मान करता है। આજે પણ મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવે છે। झूठ और चोरी को गलत समझता है। આજે પણ આપણા આદર્શો છે એ झूठ, ખોટું જે થાય છે, ચોરી થાય છે, એને ખોટું જ માનવામાં આવે છે। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझ। આજે પણ એવા આદર્શો છે કે જે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવું, બીજાને દુઃખ પહોંચાડવું એને પાપ સમજે છે। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। दरेक व्यक्ति પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં આ વાતનો અનુભવ કરે જ છે। ધર્મને આપણે માનીએ જ છીએ। આજે આપણા ધર્મના જે ગુણો છે એ ચોક્કસ દબાઈ ગયા છે, પણ આપણે એને અનુભવ કરી રહ્યા છીએ અને એનું આજે એટલું જ મહત્વ છે। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते। तो આજે પણ સમાજમાં ભ્રષ્ટાચાર, ચોરી, ડકેતી આવી કોઈ વાતો આવે છે ત્યારે આપણે એનો વિરોધ કરીએ છીએ અને સમાજમાં આવા તત્વોનું જે પ્રતિષ્ઠા છે એ ઓછી કરવા આપણે માગીએ છીએ અને ખોટી રીતે જે ધન કે આ બધું સંગ્રહ કરે છે એનો આપણે વિરોધ કરીએ છીએ। એનો મતલબ એ થાય છે કે આજે પણ આપણામાં અમુક એવા મૂલ્યો રહેલા છે, ત્યારે જ આપણે સમાજની અંદર જે છાપાની અંદર જે આવી ઘટનાઓ ઘટે છે એનો આપણે વિરોધ કરતા હોઈએ છીએ। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। કોઈ પણ દોષી વ્યક્તિ હોય એનો દોષ જાહેર કરવો એ ખરાબ બાબત નથી। बुराई यह मालूम होती है
कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। કોઈ વ્યક્તિનો વાંક કાઢવો, જાહેર કરવો એ ખરાબ વસ્તુ નથી, પણ ખરાબ વસ્તુ કઈ છે કે કોઈએ ખરાબ આચરણ કર્યું હોય તો એ આચરણને આપણે જાહેરમાં લાવી અને આપણે એમાં વધારેમાં વધારે રસ લેવો એના ખરાબ આચરણમાં एक खराब बाबत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। पण આપણે કોઈનો દોષ કાઢવો, કોઈનો વાંક કાઢવો, કોઈની ભૂલો શોધવી એને જ માત્ર આપણે ફરજ માની લેવી છે, એ ખરાબ બાબત છે। બાકી દોષોનો પર્દાફાશ કરવો એટલે કે દોષોને, કોઈનો વાંક છે, કોઈની ભૂલો છે એને જાહેર કરવી ખરાબ વસ્તુ નથી। ખરાબ વસ્તુ એ છે કે આપણે એને આપણી ફરજ માની લઈએ છીએ કે બીજાનામાં રસ લેવો, બીજાની ખરાબ આદતોમાં રસ લેવો, એની ખરાબ આદતોને જાહેર કરવી એને જ આપણે આપણી ફરજ માની લેવી, એ જ खराब बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी। હવે ખરાબ વસ્તુમાં રસ લેવો હોય તો ખરાબ વસ્તુ છે જ, પરંતુ સાચી વસ્તુમાં રસ લઈ અને એ વસ્તુને આપણે જાહેર ન કરીએ તો એ એના કરતાં પણ ખરાબ વસ્તુ છે। सैकड़ों घटना ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। समाजમાં ઘણી બધી એવી પણ ઘટનાઓ ઘટે છે, માત્ર ખરાબ ઘટનાઓ જ ઘટે છે એવું નહીં, પણ સમાજમાં ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ, હજારો ઘટનાઓ ઘટે છે કે જેને ઉજાગર કરીને આપણે લોકોના મનમાં સારી વસ્તુ છે એવી ભાવના આપણે જગાડી શકીએ છીએ, પણ આપણે એમાં રસ લેતા નથી। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। હવે લેખક પોતાના જીવનમાં બનેલી ઘટનાની વાત કરે છે કે એકવાર રેલવે સ્ટેશનમાં ટિકિટ લેતી વખતે 10 રૂપિયાની જગ્યાએ મેં 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया और लेखक से ये उतावल गाड़ी में आवीने बेसी गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। और थोड़ी वार पछी जो टिकट चेकर है એ વખતે જે સેકન્ડ ક્લાસનો જે ડબ્બો હતો જેમાં લેખક મુસાફરી કરતા હતા એ ડબ્બાની અંદર દરેક આદમીનો ચહેરો ઓળખતા ઓળખતા આ ટિકિટ બાબુ ટિકિટ ચેકર આવ્યા। उसने मुझे पहचान लिया। लेखक कहे यानी मैंने ओळखी लीधो और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई। तो टिकट चेकरे विवेक थी लेखकना हाथ में बस 90 रुपया आपी दीधा अने बोलो कि यह बहुत खोटू थई गयुं हतुं। आपने भी भाई नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तमे पण न जोयुं, मैं पण न जोयुं, बहु खोटो थई गयो। तमे न जोयुं अने मैं पण न जोयुं, बहु खोटो थई गयुं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। एना चेहरा ऊपर आम एक अलग प्रकारनो आम संतोषनी भावना, गरिमा, संतोषनी आम भावना हती। मैं चकित रह गया। लेखक कहे छे कि हूँ तो आश्चर्यचकित थी कि आटली ईमानदारी। भूल मारी हती, हूँ ज 10 रुपया आपी 100 रुपया 10 रुपयानी टिकિટની જગ્યાએ 100 रुपया આપીને હું જ નીકળી ગયો તો આને કેટલી ઈમાનદારી કે એ સહી એ મને ગોતતો ગોતતો આવ્યો અને એણે મને મારા પૈસા આપ્યા। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त है? केवी रीते कही शकाय? लेखक कहे छे कि दुनियानी अंदर ईमानदारी हाँ लुप्त थई गई छे। एम कई रीते कही सकूँ? वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ प्रामाणिकतानी घटनाओं छे, अवांछित घटनाओं पण छे। अवांछित मतलब जे आपने गमे नहीं तेवी घटनाओं पण थई छे, पण ठगवानी घटना अने आवी जे घटनाओं घटे छे एना करता आ घटना घणी शक्तिशाली छे। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। बीजू उदाहरण आपे छे लेखक कि एक बार हूँ बस पर मुसाफरी करी रह्यो तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखकनी साथे एमना पत्नी अने एमना 3 बाळको पण हता। बस में कुछ खराबी थी, बस में कई खराबी हशे। रुक रुक कर चलती थी अने बस थोड़ी वार चाले बंद थई जाए, चाले बंद थाय एवी रीते चालती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो गंतव्य एटले के लक्ष्य सुधी ज्यां एमने पहोंचवानुं हतुं ત્યાં પહોંચવામાં 5 ગાંવ दूर हशे
તો એક નિર્જન સાવ ઉજ્જડ જગ્યાએ સુમસામ જગ્યાએ બસે જવાબ આપી દીધો, મતલબ બસ ત્યાં રોકાઈ ગઈ। रात के कई 10 बजे थी અને રાતના 10 વાગ્યા હતા। बस में यात्री घबरा गए અને 10 વાગે અંધારું હતું, મુસાફરો બધા घबराई गया। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। અને કંડક્ટર બસ ઉપર સાયકલ પડી હતી એની ઉપર ગઈ, સાયકલ નીચે ઉતારી સાયકલ લઈને ચાલતો થયો। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। લોકોને શું થયું? શંકા ગઈ કે આપણને આપણી સાથે છેતરપિંડી થઈ છે, આપણને દગો થઈ રહ્યો છે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जात जातनी बातों मुसाफरों बस में बैठा था ये करवा लगा। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती, कोई कीधुं यहाँ तो लूटफाट थाय छे। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया। 2 દિવસ પહેલાં જ આવી રીતે એક બસને લૂંટી લેવામાં આવી હતી। પરિવાર સહિત અકેલા मैं ही था। પરિવાર સાથે હું એકલો હતો। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। लेखकना बाळको पानी पानी राडो पाड़ी रह्या हता। पानी का कहीं ठिकाना न था, क्या पानीनुं ठिकाणुं नहोतुं, क्या पानी एटलामां हतुं नहीं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था અને ઉપરથી પછી આ બધા લોકો જે વાતો કરતા હતા ક્યાંય ચોરી થાય લૂંટફાટ થાય એનો ડર લાગતો હતો અને પકડકર મારને પીટને का हिसाब बनाया। तो અમુક મુસાફરો હતા યુવાનો, એમણે બસ ડ્રાઈવરને મારવા માટેનું નક્કી કર્યું કે આ ડ્રાઈવર જ આપણને અહીંયા રોક્યા છે, इरादापूर्वक बस बंद कर दी थी, चोर लूटारों साथे मळी गयो छे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाया उड़ने लगी और ड्राइवरना चेहरा पर हवाया उड़वी मतलब के एकदम डरनो माहौल छवाई गयो, एना मोढा पर डर देखाई रह्यो हतो। लोगों ने उसे पकड़ लिया और लोगोए एने पकड़ी लीधो। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। लाचार दृष्टि, कातर ढंग मतलब लाचार दृष्टि, लाचार नजर से, लाचार दृष्टि से लेखकनी सामे जोवा लाग्यो અને बोल्यो, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, अमे लोग बसनो कंईक उपाय करी रह्या छीए। बचाइए, ये लोग मारेंगे, कि मने बचाओ आ लोग मने मारशे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक के डर तो मने लागतो तो, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझा। पण एनी लाचार मुद्रा जोई अने मैं मुसाफरों ने समझाया कि मारना ठीक नहीं, कि मारवू योग्य नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। मुसाफरो एटला बधा घबराई गया था कि मारी बात सांभळवा माटे तेओ तैयार नहोता। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कि आ ड्राइवर ने बातों में न आवशो, ये आपने दगो दे रह्यो छे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर ने तो आने पहलाथी डाकुओं ने बोलावा माटे मोकली दीधो छे। मैं भी बहुत भयभीत था, हूँ पण खूब डरेलो हतो, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। पण मैं ड्राइवर ने कोईपण भोगे मारपीट थी बचायो। 1.5-2 घंटे बीत गए और 2-2.5 कलाक बीती गई। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक कहे छे कि मारा बाळको भोजन एटले खावा माटे अने पाणी पीवा माटे परेशान हता। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, मारी और मारी पत्नी की हालत पण खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। लोगोए मुसाफरोए ड्राइवर ने मार्यो तो नहीं, पर बस में नीचे उतारी और एक जगह बधाए घेरीने राखी लीधो हतो। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। मुसाफरोए नक्की कर्युं कि कंई पण दुर्घटना थाय तो आपणे आ ड्राइवर ने मारी नाखो, एने पूरो कर नाखो, एवं नक्की करी अने एमने योग्य लाग्युं। ये गीड़गीड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा अने गीड़गीड़ाना मतलब करगरवानी कोई खास असर पड़ी नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही अने ए ज समय के हूँ शुं जोऊं छुं कि एक खाली बस चाली आवती हती और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। बस ऊपर हमारो बसनो कंडक्टर पण बैठो तो, जे आ बस बंद पड़ेली बसनो कंडक्टर हतो ते। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, कीधुं बस स्टेशन थी बस स्टेण्ड थी नवी बस लाव्यो छूं, इस पर बैठिए, आ बस में बधा मुसाफरो बेसी जाओ। वह बस चलाने लायक नहीं है और ते बस चलावा योग्य नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। मारी पास आयो, एक लोटानी अंदर पाणी हतुं
અને એકમાં થોડું દૂધ હતું અને લઈને મારી પાસે આવીને બોલ્યો કે પંડિતજી, બાળકો જે રોતા હતા તમારા એ હું જોઈ ન શક્યો, વહીં दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, ત્યાં થોડુંક મને દૂધ મળ્યું છે, તમારા બાળકો માટે લાવ્યો છું। યાત્રીઓ મેં ફિર જાન आई, જાન આના એટલે કે વળી પાછું બધા ઉત્સાહમાં આવી ગયા, બધા મુસાફરો ઉત્સાહમાં આવી ગયા। सबने उसे धन्यवाद दिया અને બધાએ એનો આભાર માન્યો કંડક્ટરનો। ड्राइवर से मेरी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ड्राइवरनी माफ़ी मांगी और 12 वाग्या पहला बस एना स्टेशन सुधी पहुंची गई। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। तो लेखक आ कंडक्टरना उदाहरण द्वारा अने टिकट चेकरना उदाहरण द्वारा कहे छे कि हूँ कई रीते कही सकूँ कि मनुष्यता इंसानियत एकदम पूरी समाप्त थई गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही। कई रीते कही शकाय कि लोगों अंदर दया माया जेवुं नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहे छे कि मारा जीवन में घणी बधी एवी घटनाओं घटी है कि जेने हूँ भूली सकतो नहीं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी गया, मने ठगी पण लीधो छे, मैं दगो पण मारे खायो, दगो पण भोगव्यो छे, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बहुत ओછી जग्याए विश्वासघात नामनी चीज मळे छे। बहुत ओછી जग्याए तमारी साथे विश्वासघात थतो होय छे। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। मात्र एवी बातों पर विश्वास राखो कि ज्यां तमे तमारा पर धोखो थयो छे, तमे क्यांक छेतराया छो, तो तमारो जीवन से ये दुखदायक थई जशे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। मात्र तमे खराब वस्तु याद राखशो कि मैंने हूँ अहींया छेतराई गयो, अहीं मारी साथे धोखाखड़ी थई, अहींया मने ठगी लेवामां आव्यो, तो आ तमे जो याद राखशो तो तमने एक पीड़ादायक साबित थशे तमारुं जीवन। परंतु जे घटनाओं एवी पण घटी होय कि विना कारणे कोई तमारी मदद करी होय, निराश मन को ढाढस दिया गया, तमारुं मन ज्यारे उदास होय अने ए समय तमने कोई आश्वासन आप्युं होय और हिम्मत आपी होय, तो एवी वस्तु एवी घटनाओं हमेशा याद राखो, एनो पण हिसाब राखो। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। रविंद्रनाथ टागोरे एनी एक प्रार्थना में एवं कह्युं छे कि हे भगवान, दुनियानी अंदर मारे मात्र नुकसान ज वेठવું पड़े, मात्र विश्वासघात ज सहन करवो पड़े, तो आवा समय हे प्रभु तू मने एवी शक्ति आपजे कि हूँ तारा उपर क्यारे शक न करूँ, तारा उपर क्यारे हूँ आम शक न करूँ कि हे भगवान ते केम मारा माटे आवुं कर्युं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य जे के विधिओ बनावी छे, रिवाजों बनाया छे अने जो खोटा परिणाम सुधी पहुँचे छे, एनुं परिणाम जो खोटुं आवे छे, जे के आपणे विधि विधानों कायदाओ रिवाजों बनाव्या होय एनाथी जो आपणे खराब परिणाम मळतुं होय तो आपणे एने बदलवुं पड़शे। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदलाई जा रही, जो कि आवनारा दिवसों में इन्हें આપણે बदली ज रह्या छीए, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। हजू आशानी जे आशानो दीप जे जले छे ए हजू ये दीप ओलवायो नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई। महान भारतवर्ष जे गांधी अने तिलके जे सपनाओ जोयेला हता ए सपनों हजू एमनाम ज छे। ये संभावनाओं शक्यताओं महान भारत देश की शक्यता हजू बनेली ज छे। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक कहे छे मारा मते एवुं छे कि निराश थवानी कोई ज़रूरत नहीं। तो मित्रों इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें निराश नहीं होने की बात की है कि समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही है कि जिनसे हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें हमारे मन से आस्थावान रहना चाहिए। जो गलत घटनाएं घटती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हैं उसी बात का हिसाब रखना चाहिए। गलत बातों का हिसाब रखेंगे, गलत व्यवहार हुआ है, गलत हम कहीं ठगे गए हैं, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, अन्याय होता है, ऐसी गलत बातों का हम हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा। लेकिन हम
जो अच्छी घटना है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसी बात को याद रखेंगे, तो हमारी जो आशा की जो किरणें हैं महान भारतवर्ष में, जिसने महात्मा गांधी और तिलक जी ने जो सपने देखे हैं, उस सपने को हम जरूर साकार कर पाएंगे। लेखक कहते हैं उनके मन से निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आशा की किरण बनी हुई है, एक दिन अच्छा भारत अवश्य बनेगा। बस हमें निराश नहीं होना चाहिए, बस हमें निराश नहीं होना है, अच्छाइयों के साथ चलना है, अच्छाइयों से आस्थावान बनना है, गलत रास्तों को हमें, गलत जो रिवाजों है, विधि विधान है, उसे बदलना है। तो मित्रों, यहाँ मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ। लेसन में मित्रों मैं जो शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है उसे हम लिखेंगे, तैयार करेंगे, और साथ में जो कुछ मुहावरे दिए हैं इसे भी लिखेंगे और तैयार करेंगे। 14 जुलाई तक हम इस लेसन को करेंगे, और 14 जुलाई के बाद जब हम आपको बुलाएंगे तब आपको यहाँ लेसन लेके वापस आना है। एक खास बात ये कहनी है कि आप हमारे स्कूल के जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो में आप कभी कोई कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ गलती हुई। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, सभी विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जब YouTube पर स्कूल के वीडियो देखें तो उसमें कोई गलत बात हो, कहीं कुछ सूचनाएं हो, आप चौकस कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लगे, अगर आपके कुछ प्रश्न है विषय के बारे में, प्रकरण के बारे में, तो उस प्रश्न को भी आप लिखिए और हमें संपर्क भी करिए। तो अब से आप इसमें चौकस से लाइक कीजिए, मत कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, अब की बार मिलेंगे तो कुछ और प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आवजो, बाय बाय।